So yesterday we have completed this question, and which we found that the equivalent capacitance between the 2 points is 5/3 A epsilon naught by D. ठीक है. अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा था. आई थिंक मैंने उसको रिवर्ट किया है, राइट. एंड उसमें आप हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी आप ये पॉइंट्स लेते हैं, राइट. आई थिंक जो भी स्टूडेंट है, मुझे नाम याद नहीं कौन था, आपने क्या किया था कि आपने यहाँ पर बी पॉइंट को सेंटर में ले लिया था, ई को यहाँ लिया था, 0 यहाँ पर लिया था, एंड ई वी को यहाँ लिया था. So if you are doing this way, that means you are finding a equivalent capacitance between point E and V. But हम लोग किस पे capacitance find कर रहे हैं? Between the points A and B. And generally what we used to do कि जो point A है उसे हम higher potential पे ले लेते हैं and point B को lower potential पे ले लेते हैं, right? ऐसा करना compulsory नहीं है. आप चाहें तो इसको higher potential पे ले सकते हैं, इसको lower potential पे ले सकते हैं. It is up to you. ठीक है? आंसर सेम आएगा, बट आपको जो फाइनल 2 पॉइंट्स रखने होते हैं जिनके बीच में से आप सी इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं, वो ये होना चाहिए कि भाई आपका ये पॉइंट ई यहाँ पर है और 0 यहाँ पर, इसके बीच में बाकी के पॉइंट्स आने चाहिए. ठीक है बेटा? यस क्लियर है? किसने पूछा था? प्रथम शाह. अच्छा, प्रथम शाह. ओके, हाँ ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. Yesterday we did this numerical, right? अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड किया? हमने फाइंड किया बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना हमने सीख लिया यहाँ पर. बट नाउ वी नीड टू फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट. मान लीजिए यहाँ पर हमने जो प्लेट्स लिए हैं, इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है वो हम फाइंड करेंगे. सो लेट्स टेक दिस वन. सेम सर्किट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से. Right? We know that let's connect a battery here. So we connected a battery in such a way. So this is at higher potential and this one is at lower potential. Fine. And the question is, find the charge on each plate. Find a charge. Find charge on each plate. Fine. तो क्या करेंगे इसके लिए बेटा? चार्ज फाइंड करने के लिए हर प्लेट पे हमारे पास में क्या होना चाहिए? हमारे पास चार्ज Q is equals to C into E हम लिखते हैं, right? So this is at potential. Let's say this is at potential E. This is at 0 volt. Fine. So if it has, let's say if this is at E volt, so let's say this is E volt. This is also E volt. Then this one is at 0 volt. Fine. And let's say this is at V volt, this is at V volt. Anyone has any doubt here? Right? So when we arrange them, so we can arrange them like this. Let's say charge find करना है. So let's say we can make equivalent circuit for this. Let's say we have C equivalent. Let's say this is C equivalent we have, and it is connected with a battery like this. Fine. And here it is E, here it is 0 volt. Fine. मैं यहाँ पे सिंपल सा E लिख देता हूँ, बार बार E और 0 नहीं लिख रहा. ठीक है? This is E plus minus 0. Now see, if the charge, total charge Q is moving here. Let's say if total charge Q is drawing from a battery. Fine. So यहाँ पर जो चार्ज हमें मिलेगा वो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा?
Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल चार्ज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू E, यस और नो? टोटल चार्ज इज C इक्विवेलेंट इनटू यस और नो, जल्दी बोलिए। सो C इक्विवेलेंट हमारे पास में कितना आया था, ये हम कल ही कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट? सो द C इक्विवेलेंट इज 5/3 A epsilon naught D. So we can take C equivalent is equals to 5/3 A epsilon naught by D, and EMF is E. Got it, everyone? So the total charge Q is equals to 5/3 A epsilon naught by D into E. Anyone? कोई problem इसमें किसी को? Anyone has any problem in this? No, sir. No, हाँ या ना? चलिए अब आगे देखिए। So let's say, let's take arrangement. अब इसका arrangement कर लेते हैं। So these are the points E, B, and 0 we have. ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? First of all, let's give them some name. हम इसे नाम दे देते हैं। ये प्लेट 1 है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ 1A, this is 1B, this is 2A, this is 2B, this is 3A, this is 3B, this is 4A, this is 4B, this is 5A, and this is 5B. नाम दे सकते हैं ऐसे बेटा? अरे हाँ या ना? ठीक, अब समझिए आगे। So when we draw a circuit for this, let's say this is point E, this is point B, this is point 0. Fine. Let's see. So now first of all, there is a V and 0. Let's start from bottom. Let's say from E and V. So there is a one capacitor between E and V, consists of plate 1B and 2A. अब आपको ध्यान ये रखना है कि V जो है, V पोटेंशियल 2A के साथ कनेक्टेड है और E पोटेंशियल 1B के साथ कनेक्टेड है, राइट? So we are going to do the same arrangement. So let's say here E और V के बीच में कैपेसिटर है। थोड़ा गैप ज्यादा रख रहा हूँ, so we can mention the name as well. ठीक है, ऐसे, राइट? एंड यहाँ पर है देखो 1B and 2A, तो E के साथ क्या कनेक्टेड बेटा? 1B कनेक्टेड है, और B के साथ क्या कनेक्टेड है? 2A. तो दिस इज 1B एंड दिस इज 2A. बोलो यहाँ तक कोई डाउट? पहला स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let's say second step is also between E and V, this one. तो 1B हो गया एंड 2A हो गया, ठीक है? नाउ फिर नाउ देयर इज अ V एंड E, यहाँ पर देख V और E के बीच में। सो बिटवीन V एंड E देयर इज V के साथ 2B कनेक्टेड है और E के साथ 3A कनेक्टेड है। तो V और E के बीच में लेट्स से हियर सो V के साथ 2B है और E के साथ 3A है, तो दिस इज 2B एंड दिस इज 3A. Any doubt? Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Then इसका मतलब 2B हो गया, 3A हो गया. Then there is a E and 0. तो E and 0 के बीच में देखो, this is another capacitor 3B and 4A consists of two plates. So let's say E and 0. E is connected, E and 0. So this is E and this is 0, right? So let's say from E to Z, E to 0. ऊपर ले लेता हूँ बिकॉज नीचे बैटरी कनेक्ट करेंगे।
E is connected with 3B and 0 is connected with 4A. So let's say E is connected with 3B and 0 is connected with 4A. Fine. Now, so 3B and 4A is also done. Now 0 and V, 0 और V के बीच में एक और कैपेसिटर है. 0 is connected with 4B and V is connected with 5B. So 0 and V. So this is 0 and this is V. जीरो के साथ कनेक्टेड है 4B और V के साथ कनेक्टेड है 5A. दिस इज 4B एंड दिस इज 5A. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अरे हाँ या No, ना? sir. No, sir. ठीक है. नाउ E और 0 के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट की है. तो लेट्स से यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी. बोलो कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है, अब समझिए यहाँ पर आगे. वी नो कि जो चार्ज है टोटल चार्ज कितना जा रहा है बेटा? तो टोटल चार्ज है Q is equals to C equivalent into E. So what is C equivalent? C equivalent की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5C/3. तो टोटल चार्ज जो जाएगा वो कितना जाएगा? 5CE/3. So let's say Q is equals to charge is plus Q charge जाना है which is 5CE/3. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अरे हाँ या ना? No, sir. ठीक है, तो चार्ज गया 5CE/3. लेट्स से Q चार्ज यहाँ से जा रहा है. After reaching at this point, it gets divided into 3 parts. It gets divided into 3 parts. तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ जाएगा, मान लो X यहाँ पे जाएगा. मान लो कि पॉइंट E से X चार्ज जा रहा है. After reaching at this junction point, ये जो जंक्शन पॉइंट है बेटा, यहाँ पर पहुंचने के बाद में it gets divided into parts. तो एक मान लो X यहाँ पे गया, Y यहाँ पर गया और Z यहाँ पर गया. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? Now, No, sir. as you can see, this capacitor and this capacitor are connected in parallel with each other. Yes or no? So once they are connected with each other in parallel, that means the potential across this is going to be same. Potential across this and potential across this is the same. So we can say, let's say here the potential is V1 and here is the potential V2 and both are same. So we can write V1 is equals to V2. We can write V1 is equals to V2 and V1 is equals to V2. That means what we can say, V is equals to Q by C. So we can write V1 is equals to Y. Y charge is moving through it. Y charge is moving through this and the capacitance is C. Again here it is Z charge is moving through this and capacitance is C. बोले यहाँ तक कोई doubt? And this is equals to V because both are same. ठीक है? So here we can say C से C गया तो Y is equals to Z आ जाएगा. Y is equals to क्या आ गया? Y is equals to क्या आ जाएगा? Z. बोले यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? So now we can say this Y is equals to Z. This is Y is equals to Z. So when Y is equals to Z, we say यहाँ पर हम लिख रहे हैं Y is equals to Z. So this is Y. So let's say plus Y is here, minus Y is here. यहाँ पर भी बेटा plus Y minus Y लिख सकते हैं. And combinedly यहाँ से Y निकल रहा होगा, यहाँ से भी Y निकल रहा होगा. And combined it becomes 2Y और यहाँ से 2Y निकल रहा होगा. Yes or no? अरे हाँ या ना? Yes, sir. और इस प्लेस पे आएगा प्लस 2y और यहाँ पर आएगा माइनस 2y. यहाँ पर आएगा प्लस x, 3b के पास में 4a के पास आएगा माइनस x एंड प्लस x यहाँ से बाहर निकल रहा होगा. टोटल चार्ज यहाँ से निकल रहा होगा x प्लस 2y. टोटल चार्ज कितना निकल रहा होगा? x प्लस 2y. एंड दिस चार्ज इज इक्वल टू दिस चार्ज. भाई जितना निकला है उतना ही बाहर आएगा. तो एंटर किया था कैपिटल Q, हमने लिया 5C/3.
और जो बाहर निकल रहा है वो x plus 2y के बराबर है. So we can say that charge q is equals to, what we can say that charge q is equals to 5c by 3 5ce by 3 which is equals to x plus 2y. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. अरे यहाँ तक No, किसी को sir. कुछ समस्या हो तो बताओ जल्दी से. No, sir. So let's say this is equation number 1 we have now. This is equation number 1 we have. तो एक इक्वेशन आ गई, हमें एक इक्वेशन और चाहिए, right? So because x y दो अननोन है, x and y दो अननोन है, y is equal to z है तो z की तो कोई चिंता अब हमें नहीं है. So let's say let's take one more loop. तो लूप कौन सा लेंगे बेटा? तो देखो हम ये वाला लूप ले लेते हैं. देखो यहाँ से शुरू करेंगे इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से शुरू करेंगे और ये लूप लेके कंप्लीट करेंगे. बोलो आई बात समझ में? तो जब आप ये लूप लेंगे बेटा, लूप समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो जब आप ये लूप लेंगे तो जब आप यहाँ से शुरू करेंगे, देखो जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आया? कैपेसिटर आया जिसपे चार्ज कितना है? x. जिसपे चार्ज कितना है? x. तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज q by c. तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस इज q by c. तो q कितना है? x. और चार्ज और कैपेसिटेंस कितना आएगा? c. तो x by c. ठीक है. देन यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा? माइनस c. यहाँ से आप आगे जाएंगे तो पोटेंशियल कितना आएगा? माइनस c. अरे लोअर टू हायर जाएंगे तो माइनस c लिखेंगे. यस और नो? Yes. Yes. So what we can say, using a loop, this one, so q by c पोटेंशियल गिव्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? q by c. तो q कितना है? x. तो लेट्स से x by c minus e equals to 0. x is equals to क्या आ जाएगा? c टाइम्स ऑफ e आ जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई हमारे पास में. बोलो कोई डाउट है किसी को? सर ये ई कैसे आया सर? कौन सा b? ई आपने लिया ना क्यूब बाई सी ये रहा ना माइनस बेटा, ये रहा. इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? जब वही लिया सर. तो x प्लस 2y नहीं आएगा सर? वो बाहर निकलता है वो तो चार्ज है ना, हमें तो पोटेंशियल लेना है बेटा. ये तो चार्ज है x प्लस 2 है. तो ओके ओके सर. हम लूप ले रहे हैं ना, लूप में तो हम पोटेंशियल को ऐड करते हैं. मान लो मैं इसको मान लो अगर मैं ऐसा लिखूं सपोज कि यहाँ पर मैंने ले लिया है V3 पोटेंशियल और यहाँ पे ले लिया V4 पोटेंशियल. ठीक है. तो हम पोटेंशियल को ऐड करते हैं. तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे? V3 माइनस V4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे. अरे हाँ या ना? Yes, तो sir. V3 इज इक्वल टू V4 हो जाएगा. और V3 की वैल्यू कितनी आएगी? तो V3 की वैल्यू आएगी x by c. और V4 किसके इक्विवेलेंट है? तो V4 e के इक्विवेलेंट है. तो x इक्वल टू c आ जाएगा. यस सर. So now using equation 1 and 2 we can say, now we can place, let's say ये जो x इक्वल टू c है इसकी वैल्यू का आप यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा? देखो 5 times of ce by 3 is equals to x plus 2y and x को हम रिप्लेस करेंगे c times of e से, right? So now the value of 2y is so we can say 2y is equals to 5 times of c e by 3 minus c times of e. तो कितना हो जाएगा? 5 minus 3. तो ये हो जाएगा 2 times of c e by 3 is equals to 2y. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा c times of e by 3. बोलो हाँ या ना? यस सर. किसी को कोई डाउट है? नो सर. पक्का? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हमारे पास में क्या क्या आ गया? y आ गया, x की वैल्यू आ गई. ठीक है. x की वैल्यू कितनी आ गई? we have x is equals to c times of e and we have y is equals to c e by 3 and z is also y is equals to z.
राइट। तो जहां पर 2i लिखा है वहां पर चार्ज आएगा +2c/3। देखो यहाँ पर लेट्स से यहाँ पे +2i लिखा है, तो +2i का मतलब क्या आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ ce/3 चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और जहां पर x लिखा है वहां पर c ही चार्ज आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ Yes, या sir. ना? Yes, sir. सो नाउ यू कैन फाइंड इंडिविजुअल चार्ज। भाई जो है, जैसे मान लो 1 EV पे निकालना है आपको, तो 1 EV का चार्ज आ जाएगा। 2a पे निकालना है तो 2a का आ गया, 3a पे आ जाएगा, 2b पे आ जाएगा, 5b पे आ जाएगा, 4b पे आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अब जैसे मान लो यहाँ पर समझिए, मुझे तो पूरे कैपेसिटर का चाहिए। भाई यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या है, 1b और 1b और 1a, ठीक है। तो मुझे तो 1b और 1a दोनों का देखना है। तो यहाँ पर मेरे पास 1b है क्या? तो मेरे पास ये रहा 1b, और 1a है यहाँ पर कहीं पर नहीं है। तो 1b का हमारे पास में कितना आ जाएगा, +y। तो लेट्स से फॉर द फर्स्ट वन, मतलब फर्स्ट प्लेट का जो हमारे पास में चार्ज आ जाएगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू ce/3 आ जाएगा, ठीक है। देन लेट्स से फॉर द सेकंड वन, तो सेकंड में 2a 2b आएगा। तो 2a कितना है बेटा, -y, और 2b पे कितना है, -y। अरे हाँ या ना? अरे 2a पे कितना है, -y, एंड 2b पे कितना है, Yes, sir. -y। Yes, बोलो आई sir. बात समझ में? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ पे किसी को? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। सो फॉर द सेकंड प्लेट वी कैन से इट इज -2y, तो इट इज -2 टाइम्स ऑफ ce/3। यस और नो? लेट्स से फॉर द थर्ड वन, तो थर्ड वन के लिए 3a 3b हमें देखना है। सो वेयर इज 3 एंड वेयर इज 3b? लेट्स से 3a कहाँ है, तो 3a के पास में है +y, और 3b के पास में है +x। अरे हाँ या ना? सो फॉर थर्ड वी कैन से x + y। थर्ड के लिए क्या लिखेंगे, x + y। सो लेट्स से इट इज x + y। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में, c टाइम्स ऑफ e, और y की वैल्यू कितनी है, c टाइम्स ऑफ e/3। तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ce/3। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Let's say for the fourth one, so fourth one is 4a 4b, so 4a and 4b, तो 4a कहाँ है, तो this is 4a, and where is 4b, तो this is 4b, this is 4b। तो 4a के पास है -x and 4b के पास है -2y, तो -x -2y क्या लिखेंगे बेटा, -x -2y। so let's say -x -2y, so we can write -c times of e, -c times of e minus 2 times of c/3। माइनस को चाहो तो कॉमन निकाल लो, एंड ये हो जाएगा 3 + 2, तो 5c/3, तो -5c/3 हो जाएगा आंसर। यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. नाउ लेट्स से 5a 5b, तो हमारे पास में क्या है, सिर्फ 5a है, सो 5a इज +2y। तो फॉर द फिफ्थ वन इट इज 2y, फॉर द फिफ्थ वन इट इज 2y, so for 2y it is 2 times of ce/3। so we found the charge on individual plates। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? No, sir. पक्का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। No, sir. कंफर्म? अब समझिए, जैसे कि ये सब चीजें मैं जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड विद द सेम पोलैरिटी, ठीक है। तो ये सब हम बेटा पहले पढ़ चुके हैं एक बार, आप सभी को याद होगा, जिसमें हमने कौन पोटेंशियल निकाला था, राइट।
So here the same thing I am taking again. थोड़ा सा हम लोग एक क्विक रिवीजन तरीके से ले लेंगे इसको, बिकॉज ये थोड़ा सा लिंक करेगा चीजों को अभी जो हमें पढ़ना है उसके साथ में, ठीक है. So let's say when capacitor are connected, when capacitor connected with the same polarity, तो first thing हमने लिया है कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसके पास C1 है, कैपेसिटर C1 C2 है. सॉरी, इनिशियली हमने कैपेसिटर्स लिया है जिसपे कोई चार्ज हम जिसपे हमने कनेक्ट नहीं किया है. इट इज नॉट कनेक्टेड, फाइन. तो जब कनेक्टेड नहीं है उस टाइम पे उसके पास जो चार्ज है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है दैट Q1 इनिशियल इज इक्वल टू C1 V1, Q1 is C1 V1, Q2 initial is C2 V2. Here it is minus C1 V1, here minus C2 V2. ठीक है. तो इनिशियली हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कितनी आती है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर आती है. यस और नो, राइट. बट वंस वी कनेक्ट देम, जैसे मान लीजिए हमने इसे कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के बाद में क्या होता है बेटा कि जो चार्ज होता है, अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर हमने दो प्लेट्स ली है, ठीक है. This is also having positive polarity, this is also having positive polarity, both are positive, having a positive polarity, ठीक है. So this is positive, this is positive, this is negative, this is negative, and these 2 points are connected. तो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है. अब क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा. नाउ यू ऑल नो दैट कि चार्ज ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों प्लेट का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए. तो लेट्स से वी हैव टेकन द कॉमन पोटेंशियल VC, हमने क्या नाम दे दिया, VC नाम दे दिया उसको, ठीक. अब इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, तो अब इसके पास चार्ज आ जाएगा Q1 is equals to Q1 फाइनल. तो Q1 फाइनल हमारे पास में अब क्या आ जाएगा, देखो जो C1 V1 था अब वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा C1 VC, मतलब कि कॉमन पोटेंशियल में मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस C1 VC, और यहाँ पर C2 V2 जो होता था वो क्या हो जाएगा, C2 into VC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस C2 V2 की जगह पे माइनस C2 into VC, राइट. आया ना, ठीक है. अब यहाँ पर देखो Q1 फाइनल एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के इक्विवेलेंट होना चाहिए, राइट. तो we can write Q1 final plus Q2 final is equals to Q1 initial plus Q2 initial. बोलो यहाँ तक बात समझ में आई. Now we know that Q1 final हमारे पास में कितना था बेटा, तो C1 VC plus C2 VC. तो हमने यहाँ पर VC को कॉमन ले लिया, तो C1 plus C2 ब्रैकेट में लिया है और VC आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल. एंड Q1 इनिशियल प्लस Q2 इनिशियल को हमने लिखा है C1 V1 plus C2 V2. बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, अरे हाँ या ना. No, sir. अब आगे देखो यहाँ पे हमारा कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 आ जाएगा. यस और नो, अरे हाँ या ना, बोलिए जल्दी बोलिए. Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक. इसका मतलब अब हमें जो Q1 फाइनल लेना है, तो Q1 फाइनल को हम क्या लिखते हैं, C1 into VC लिखते हैं. भाई पोटेंशियल अब तो क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल आएगा. तो VC की वैल्यू क्या है, तो VC की वैल्यू आप देख सकते हो हमने लिखी है C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट. तो वो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, Q1 आ जाएगा, Q1 फाइनल. सिमिलरली यहाँ पर हमने Q2 फाइनल लिखा है which is equals to C2 into VC. अब C2 into VC मतलब VC की वैल्यू कितनी है, अगेन C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो Q2 फाइनल मिल जाएगा. बोलो हाँ या ना, ठीक. अब Yes, यहाँ sir. पर देखो जो एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी हमने इनिशियली कितना लिया था, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर लिया था, राइट. और फाइनल एनर्जी हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1/2 C1 VC स्क्वायर प्लस C2 VC स्क्वायर. VC इज द कॉमन, VC स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा. तो फाइनल एनर्जी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 1/2 C1 प्लस C2 into VC स्क्वायर. बोलो हाँ या ना. बेटा ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है सभी को, Yes, sir. ये Yes. सब पढ़ चुके हैं हम पहले, ठीक है. उसके बाद में हमने पढ़ा था हीट लॉस. हीट लॉस इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल. तो वो हमारे पास में कितना आएगा, फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर. बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये भी हमने क्लास में पढ़ा था, याद है कि नहीं, अरे हाँ या ना. Yes, sir. ठीक है. नाउ लेट्स से अगर हमने पहला केस लिया जिसमें हमने सेम पोलैरिटी को कनेक्ट किया था, ठीक है. अभी हमने क्या किया है,
आप देख सकते हैं जो सेकंड डायग्राम है इसके अंदर कि यहाँ पर जो पोलैरिटी हमने लिया पॉजिटिव है और यहाँ पर जो पोलैरिटी लिया वो नेगेटिव है, मतलब कि आप पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो उस कंडीशन में हमारा क्या आंसर वेरी कर रहा है वो हमें देखना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप समझिए यहाँ पर कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट्स से इसे मैंने कनेक्ट किया, तो पहली कंडीशन तो आप सभी जानते हैं C1V1 आएगा, यहाँ माइनस C1C2 है, यहाँ माइनस C2V2 है और यहाँ पे प्लस C2V2 है। ठीक है, बिकॉज हम ऑपोजिट पोलैरिटी को लेके चल रहे हैं अभी। ठीक, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो अब समझिए जब आपने ऑपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास कितना चार्ज आ जाएगा? वही पोटेंशियल तो आपका यहाँ पर था VC, पोटेंशियल तो यहाँ पर VC था और यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है? VC, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल वी कैन हैव, यस और नो, राइट? तो ये हो जाएगा आपका प्लस Q1 फाइनल और ये हो जाएगा माइनस Q1 फाइनल और ये आया आपका Q2 फाइनल और ये आया आपका ये माइनस Q2 फाइनल और यहाँ पे आएगा प्लस Q2 फाइनल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ या ना? No, sir. राइट, एंड पोटेंशियल कैसा है? दोनों के पास सेम है। तो देखो कॉमन पोटेंशियल मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वापस से वो पूरा गणित करने नहीं बैठ रहा हूँ। ठीक है, कि इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज करो फिर कॉमन पोटेंशियल निकालो। वी नो दैट कि सिर्फ साइन चेंज होगा यहाँ पर। सो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पर C1V1 माइनस C2V2 बाय C1 प्लस C2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? और बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया? ये कहाँ से आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें पहले, ये वाला स्टेप कहाँ से आया? क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. ना अगर आपसे पूछा जाए Q1 फाइनल क्या आएगा तो Q1 फाइनल को बेटा हम लिखेंगे C1 इंटू VC। VC क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। तो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है बेटा? C1V1 माइनस C2V2 बाय C1 प्लस C2 होता है। वो वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर। बोलो किसी को कोई डाउट है? सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू VC, तो आप देख सकते हो हमारे पास में C2 इंटू VC, वी नो द वैल्यू ऑफ VC, राइट? तो अगर आप चाहें तो आप सीधा लिख सकते हैं C2 इंटू VC। VC की वैल्यू क्या है? तो C1V1 माइनस C2V2 बाय C1 प्लस C2। आप याद रखिएगा जब आप अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट करते हैं तब भी यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आता है, अदरवाइज क्या साइन आता है? पॉजिटिव साइन आता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? Yes. हाँ या ना? Yes, sir. साइन का क्या बोले, रिपीट करो तो। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सेम पोलैरिटी से कनेक्ट करते हैं, सेम पोलैरिटी का मतलब है कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, उस टाइम पे कॉमन पोटेंशियल आता है C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। और अगर हमने ऑपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट किया, मतलब कि ऑपोजिट का मतलब ये है कि पॉजिटिव प्लेट को यहाँ पर नेगेटिव प्लेट से साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव प्लेट को हमने यहाँ पे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, ऐसे, राइट? इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आता है कि C1V1 माइनस C2V2 बाय C1 प्लस C2 आता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, नो। अरे हाँ या ना? नो सर, नो चलो डाउट। अब आप देखो U फाइनल हमारे पास में आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू VC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि जब हम ऑपोजिट पोलैरिटी लेते हैं तो हमारे जो हीट लॉस आता है, ये ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे कि हीट लॉस जो आता है वो आता है 1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। क्या चेंज आया भाई? जब हम सेम पोलैरिटी लेते थे तो यहाँ पर V1 माइनस V2 आ रहा था, हाँ या ना? अरे यस और नो? सेम Yes. पोलैरिटी लेते थे तो V1 माइनस V2 आ रहा था, और अब क्या आ रहा है? तो V1 प्लस V2 आ रहा है। बस ये वेरिएशन है इसमें। बोलो आई बात समझ में? समझ में आया? यस और नो? जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक, अब समझिए आगे। Let's say when the capacitor is isolated and not connected to battery, मैं ये कह रहा हूं
अब देखिए आइसोलेटेड कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड विद अ बैटरी, ये कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन में हम अलग अलग पैरामीटर्स को देखेंगे कि कैसे वो वेरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हमने एक आइसोलेटेड कैपेसिटर लिया है, कनेक्ट, इट इज नॉट कनेक्टेड विद अ बैटरी, और यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पर क्या है, एयर है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो समझिए बेटा कि हमारे पास में चार्ज कितना आ जाएगा, तो Q इनिशियल इज इक्वल्स टू प्लस Q चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर है माइनस Q, तो इनिशियल चार्ज क्या आ गया, प्लस Q आ गया, बोलो प्लस स्टेप क्लियर है, ठीक है। तो ये Q इज इक्वल्स प्लस Q हो गया। देन कैपेसिटेंस इज कितना आएगा, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D आ जाएगा कैपेसिटेंस, राइट। देन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लेते हैं बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, E बाय D, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है बेटा, E बाय D। देन द फोर्स इनिशियली इट इज Q स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट, फोर्स कितना आएगा, Q स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट, बोलो यस और नो। फोर्स तो यही आता है बेटा, Q स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। अब दूसरा देखिए यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी Q स्क्वायर बाय 2C, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, Q स्क्वायर बाय 2C। तो ये सारे क्लियर है सभी को, राइट। अब समझिए कि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है बेटा। अब हमने क्या किया, उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल किया, क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल किया है, ठीक है। 2 प्लेट्स है, उसके बीच में हमने क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। तो जब 2 प्लेट्स में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो उसकी वजह से जो पैरामीटर्स हैं, मतलब जो चार्ज है, कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, या फोर्स है और एनर्जी है, उस पे इसका क्या इफेक्ट आता है वो समझिए। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज में तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, चार्ज तो जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है, हाँ या ना, राइट। फिर अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की बेटा, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स ऑफ C नॉट हो जाता है, अरे हाँ या ना। Yes, sir. देन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा, देखो वैसे कितनी आती थी एयर में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आती थी, और जब आप उसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फील्ड होता है कैपेसिटर, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है सिग्मा बाय K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को तो हमने लिख दिया E डिवाइड बाय K। बोलो कोई डाउट यहाँ पर। अब समझिए आगे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझिए पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हम लिखते हैं V फाइनल इज इक्वल्स टू E फाइनल बाय D, मतलब V इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, E बाय D। तो V फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय D, और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E बाय K, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E बाय K। तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V बाय K हो जाएगा, यस और नो। अरे हाँ या ना, अरे समझ में आया, समझ सर में एक बार आया। फिर से एक्सप्लेन करो ना। मैं ये कह रहा हूं, ये जो V फाइनल दिख रहा है आपको, तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ V फाइनल इज इक्वल्स क्या होता है, E फाइनल बाय D होता है। V फाइनल इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, E फाइनल बाय D। E फाइनल कितना आएगा, E फाइनल कितना आएगा, E बाय K। अरे यार E फाइनल कितना आ जाएगा, E बाय E K by K। इंटू D, और E बाय K किसके इक्विवेलेंट है, तो E बाय K, सॉरी E बाय D किसके इक्विवेलेंट है, तो E बाय D किसके इक्विवेलेंट है, इट इज इनिशियल पोटेंशियल से। तो हम लिखेंगे V फाइनल इक्वल्स टू V इनिशियल बाय K। बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब बात करो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C। C कितना है, तो C फाइनल, और C फाइनल हमारे पास में कितना है बेटा, K टाइम्स ऑफ C नॉट आया। C फाइनल कितना है, K टाइम्स ऑफ C नॉट, तो हमने लिखा K टाइम्स ऑफ C नॉट। C नॉट मतलब कि C, ठीक है, ये C लिख देता हूँ यहाँ पर बिकॉज हमने C लिया है।
तो k टाइम्स ऑफ c, राइट। तो q स्क्वायर बाय 2c हमें पहले मिला था, अरे हाँ या ना, क्या है q स्क्वायर बाय 2c हमने पहले लिया था। u इज इक्वल्स टू, ये u इनिशियल है, u इनिशियल क्या है q स्क्वायर बाय 2c, तो अब ये कितना हो जाएगा, u इनिशियल बाय k हो जाएगा, हाँ या ना, u इनिशियल बाय k हो जाएगा। Yes, sir. अरे सिर्फ वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं, बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले। No, sir. है किसी को कोई डाउट? अब देखिए, अब हम देखेंगे कि जब हमने कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है तो उसमें जो पैरामीटर्स है वो कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इनिशियल कैपेसिटेंस। तो इनिशियल कैपेसिटेंस को बेटा हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, तो उसे रिप्रेजेंट किया है a एप्सिलॉन नॉट बाय d से। देन इनिशियल चार्ज qi, तो qi क्या आ जाएगा, इनिशियल कैपेसिटेंस इनटू e, इनिशियल कैपेसिटेंस, अरे इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं, q इज इक्वल्स टू cv होता है, अरे हाँ या ना, q इज इक्वल्स टू cv होता है। अब c कौन सा है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस, और v कौन सा है, तो इनिशियल v, तो v के यहाँ पर देखो पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, e दिया हुआ है, यस और नो, बिकॉज़ बैटरी इज कनेक्टेड विद द बैटरी, हाँ या ना। Yes, sir. तो q हमें मिल गया c1 c इनिशियल इंटू EMF E, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें कि हमें v कितना मिलेगा, ठीक है, तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी, दोनों सेम है, v इज इक्वल्स टू e, बिकॉज़ जितना हमने दिया पोटेंशियल उतना ही मिलेगा, हाँ या ना। अब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल कितनी है, E बाय डी, कितनी है, E बाय डी, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू V बाय डी फॉर्मूला है, तो V को हमने रिप्लेस किया E से, तो ये क्या आ जाएगा, E बाय डी आ जाएगा, हाँ या ना। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? आप समझिए कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, भाई हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 CV स्क्वायर, तो C तो इनिशियल और V इनिशियल, V इनिशियल का मतलब क्या है कि जो हमने बैटरी कनेक्ट किया वो जितना पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा उतना ही पोटेंशियल आएगा, तो हम ले लेंगे E, तो 1/2 C स्क्वायर आ गया, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अगर हो तो बताओ जल्दी से। आप समझिए, अब मान लीजिए कि बैटरी कनेक्टेड है बेटा और हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है, क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने की वजह से कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C फाइनल इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C इनिशियल हो जाएगा, हाँ या ना। फाइनल चार्ज Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फाइनल कैपेसिटेंस इनटू E, देन फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q फाइनल बाय C फाइनल इज इक्वल्स टू V इनिशियल। समझ में आया कुछ कि नहीं, V फाइनल इज इक्वल्स टू V इनिशियल आएगा, यस और नो। बोलो जल्दी। नहीं सर, रिपीट करो। ठीक है, अब समझिए, ये स्टेप क्लियर है कि V फाइनल इज इक्वल्स नहीं टू सर, रिपीट करो तो सर। V फाइनल इज इक्वल्स टू V इनिशियल ऐसे होता है बेटा, V इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, E बाय डी लिखते हैं, E फाइनल बाय डी, यस और नो, या यस फिर हम सर।
Q by C लिखता हूँ चलो। तो Q फाइनल बाय C फाइनल। Q फाइनल का मतलब कितना है, C फाइनल इंटू E, और नीचे कितना है C फाइनल। तो C फाइनल कैंसिल आउट, तो V इज इक्वल टू क्या आया, E आया कि नहीं आया। तो इनिशियली भी उतना ही था, अभी फाइनल में भी इतना ही है। तो देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल, देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल, यस और नो। Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं sir. बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V by D। सो वी नो द वैल्यू ऑफ V। फाइनल कितना है आपका E और डिवाइड बाय D। तो इनिशियली भी इतना ही आ रहा था E by D। सो देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट चेंज हियर, है ना। दूसरा है लास्ट में कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो 1/2 C फाइनल E स्क्वायर, 1/2 C फाइनल E स्क्वायर। अगर हम इसे लिखें that 1/2 C final, so what is C final, so C final is K times of C initial into E square, right। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 C initial into E square, तो 1/2 C initial into E square ये किसके बराबर है बेटा, U initial के बराबर है। अरे हाँ या ना। So what we can say that U final is equal to K times of U initial, ये 1/2 C initial square is replaced by U initial, और ये K था, K को मल्टीप्लाई में लिया है, तो U final हमारे पास में कितना आ गया, K times of U initial आया, yes or no। Yes, sir. यहाँ तो कोई डाउट है किसी को। No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब समझिए, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल समझिए। लेट्स से यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है, एक स्विच है, और यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये E वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटेंस C है। अगर हम यहाँ पे स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। सो कैपेसिटर इज चार्ज विद पोटेंशियल डिफरेंस E। कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा विद पोटेंशियल डिफरेंस E। सो यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q, चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस C एंड माइनस C। तो यहाँ पर बेटा चार्ज आएगा प्लस CE, और यहाँ पर बेटा चार्ज आएगा माइनस C, यस और नो। अरे हाँ या ना। Yes, sir. Right, so here I can say ये आपकी switch है, here I can say and capacitor is charged with the potential difference E, and here capacitor is charged, capacitor is charged with potential difference E, with potential difference E, ठीक है। और इन स्टडी स्टेट कंडीशन चार्ज ऑन कैपेसिटेंस इज C। स्टडी स्टेट कंडीशन में चार्ज कितना आ जाएगा, इन स्टडी स्टेट charge on capacitor is C times of E। कितना चार्ज आ गया, C times of E। तो एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितनी आ गई, तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 CE into E। लिखते हैं ना 1/2 Q into V, तो Q कितना है C और V कितना है तो E। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 C स्क्वायर, हाँ या ना। अरे हाँ या ना। Yes, sir. फाइन, अब समझिए आगे। लेट्स से नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, अभी क्वेश्चन को साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड, नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, let's say now battery is
डिस्कनेक्टेड ठीक है, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं एंड नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड देन हम उससे क्या करेंगे, वापस से कनेक्ट करेंगे। तो नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू सेम कनेक्टेड डिस्कनेक्ट किया और वापस से कनेक्ट किया किससे, तो नाउ डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू सेम above charged capacitor with opposite polarity। ठीक है, नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब जो बैटरी लगी उसको डिस्कनेक्ट किया और फिर से कनेक्ट किया, तो द सेम अबाउट चार्ज कंडक्टर to same above charge capacitor with opposite polarity। अब कैसे, तो समझो, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ये है, मान लो मैं इसी को ले लेता हूं, इसी को हमने कनेक्ट करना है विथ ऑपोजिट पोलैरिटी। ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो बैटरी है इसके टर्मिनल चेंज करेंगे, इधर नेगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ गया। देखो पहले यहाँ पर पॉजिटिव था, नेगेटिव था, अब यहाँ पर बेटा नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। बोलो ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सभी के माइंड में? क्वेश्चन क्लियर है सभी के माइंड में? Yes, है sir. ना? ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड हीट डिसिपेटेड आफ्टर क्लोजिंग स्विच एस इन दिस केस। क्वेश्चन क्या है कि ये स्विच है, इसे क्लोज करने के बाद की कंडीशन है। लेट्स से द क्वेश्चन इज आफ्टर, सो फाइंड द हीट dissipated after, find heat dissipated after closing switch in circuit। ठीक, हीट निकालनी है। अच्छा समझो, हीट बेटा हमें क्यों मिलेगी? पहली चीज तो हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए, भाई आपने बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी जब कनेक्ट की है तो वो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो हीट भी जनरेट होगी कि नहीं बेटा? अरे हाँ है ना? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप सभी जानते हैं कि फाइनली ये पॉजिटिव प्लेट है, मतलब सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, राइट? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसके पास चार्ज कितना आना चाहिए? अगर आप देखिए तो इसके पास चार्ज आना कितना चाहिए? प्लस सी चार्ज आना चाहिए, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. और इसके पास कितना आना चाहिए? माइनस सी आना चाहिए। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, sir. बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले क्लियर करो। है किसी को कोई डाउट इसमें पहले? तो मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस सी और माइनस सी चार्ज आ रहा है आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, लेकिन आप एक चीज समझिए कि जब आपने स्विच क्लोज किया और हम जानते हैं कि फाइनली हमारे पास में ये सिचुएशन आनी चाहिए कि यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको जिस प्लेट के साथ कनेक्ट किया है उस पे प्लस सी चार्ज आएगा और सामने वाले पे माइनस सी चार्ज आएगा, राइट? सो अब आप मुझे ये बताइए कि यहां से कितना चार्ज निकलना चाहिए? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यहां से कितना चार्ज निकलना चाहिए जिससे कि यहाँ प्लस सी हो जाए? आपके पास है कितना? माइनस सी।
आपको लाना प्लस सी है, तो ये बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा होगा? 2 times of C. वेरी गुड, 2 टाइम्स ऑफ सी निकल रहा होगा, राइट। तो वी कैन से यहाँ से जो चार्ज निकल रहा होगा वो कितना निकल रहा होगा? 2 टाइम्स ऑफ सी, क्योंकि जब यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ सी जाएगा और ये माइनस सी है तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? प्लस सी हो जाएगा, हाँ या ना? तो हमारे पास में कितना, क्या हमारे पास में कितना चार्ज आ जाएगा वहां पे? प्लस सी चार्ज आ जाएगा। बोलो यस और नो। तो अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि बैटरी जो है वो सप्लाई कर रही है प्लस टू सी चार्ज को, तो वी कैन से बैटरी सप्लाइज चार्ज प्लस 2 CE and final steady state charge on Cs and final steady state charge on कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ रहा है? CE कितना चार्ज आ रहा है? CE, हाँ या ना? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखते हैं 1/2 Q into V। तो आप समझिए 1/2 चार्ज कितना है बेटा? तो C टाइम्स ऑफ E चार्ज है, और ये पोटेंशियल कितना है? तो यहाँ पर E वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ ले लेंगे E, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 1/2 CE स्क्वायर, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes. अब आप एक चीज समझिए, आपसे पूछा क्या जा रहा था? आपसे पूछा ये जा रहा है कि यू नीड टू फाइंड द हीट एनर्जी डिसिपेटेड। तो हीट एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या हो गया, कैसे बनेगा समझिए। लेट्स से वर्क डन बाय द बैटरी, यहाँ पर काम किसने किया? बैटरी ने किया है, हमने तो किया नहीं है भाई, बैटरी ने 2C चार्ज को फ्लो करवाया है। तो लेट्स से वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस heat energy dissipated, change in potential energy plus heat energy dissipated। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हीट एनर्जी निकालनी है, यही फॉर्मूला रहेगा हर बार, ये ध्यान रखना। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोलो हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब बताओ वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा? वर्क डन बाय बैटरी का मतलब क्या हुआ? Q इंटू E। तो Q कितना आया हमारे पास में बेटा? चार्ज कितना है हमारे पास में? 2CE। चार्ज कितना है हमारे पास में? चार्ज कितना है हमारे पास में? 2CE। और पोटेंशियल इज E माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो फाइनल इज 1/2 CE स्क्वायर और इनिशियल इज ऑल्सो 1/2 CE स्क्वायर। भाई फाइनल और इनिशियल दोनों सेम एनर्जी है हमारे पास में, राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो हमारे पास में हीट एनर्जी कितनी आ जाएगी? हीट एनर्जी कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ CE स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अरे हाँ या ना? बोलिए समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ लेट्स से एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से 2 प्लेट्स ले ली कैपेसिटर की, और हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करवाया है, ठीक है।
अब आप समझिए कि यहाँ पर चार्ज कितना है, लेट्स से हियर वी हैव अ चार्ज प्लस Q1, तो यहाँ पर आएगा माइनस Q1, लेट्स से हियर इज चार्ज प्लस Q2 एंड हियर इज चार्ज माइनस Q2। अब यहाँ पर तो एयर है और यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, राइट, एंड दिस इज कैपेसिटर C1 एंड दिस इज कैपेसिटर C2। क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर Yes, है? sir. इसका एरिया ए है, सेपरेशन डी, एरिया ए है, सेपरेशन डी, एंड आइसोलेटेड है। जो जो चीजें गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ, एंड आइसोलेटेड है। तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकते हैं बेटा? Q बाय ए लिख सकते हैं, पहली चीज क्लियर है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी हम क्या लिख सकते हैं? Q बाय ए लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. अब समझिए, अगर मैं यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, अब आप समझिए क्या ये एक कैपेसिटर बन गया, इसका एरिया A/2 है, इसका एरिया A/2 है, हाँ या ना? Yes, sir. ये आपका एक कैपेसिटर बन रहा है और ये आपका एक कैपेसिटर बन रहा है, दिस इज C1 और दिस इज C2। इसका एरिया A/2 आ जाएगा, इसका एरिया A/2 आ जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ सपोज इसका पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल, पहले तो ये बताओ सीरीज में है कि पैरेलल में है? Parallel. पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा? Same. सेम रहेगा। वेरी गुड। सो लेट्स से पहला तो हमें ये मिल गया, अगर ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से चार्ज Q निकलता है प्लस Q, तो इट गेट्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, तो वी कैन से Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q, यस और नो? लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना? ये इक्वेशन एक मिल गई। अब दूसरी बात समझो, मैंने कहा कि पोटेंशियल दोनों पे पास सेम है, तो मैं कहूंगा पोटेंशियल V1 इज इक्वल्स टू V2, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? Q1 बाय C1, और V2 क्या लिखूंगा? Q2 बाय C2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अरे हाँ या ना? No, sir. ठीक है, तो Q1 बाय C1, C1 की वैल्यू कितनी आएगी? C1 की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बोलिए? C1 की वैल्यू कितनी आएगी? K टाइम्स ऑफ A/2 एरिया है, एप्सिलॉन नॉट बाय D, यस और नो? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q2 बाय C2, C2 मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो K टाइम्स ऑफ A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहाँ तक क्लियर है? अरे K नहीं आएगा, सॉरी, बिकॉज देयर इज अ एरर। बोलो ये स्टेप्स क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो A/2 एप्सिलॉन नॉट D, A/2 एप्सिलॉन D क्लियर। तो Q1 बाय K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q2। Q1 बाय K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q2। तो क्या लिख सकते हैं? Q1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q2 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. और हमारे पास में ऑलरेडी क्या मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये Q1 की वैल्यू पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा बेटा? K टाइम्स ऑफ Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, तो Q2 इंटू K प्लस 1 इज इक्वल टू Q, तो Q2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? Q डिवाइड बाय K प्लस 1। बोलो हाँ या ना? Yes, हाँ sir. या ना? ठीक। अब देखो दूसरा चीज समझो, Q1 निकालना है, तो Q1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q2, so we can write K times of Q2। Q2 की वैल्यू कितनी है? It is Q by K plus 1। बोलो यहाँ तो कोई डाउट किसी को? This is Q1, so now we have Q1 and Q2 both। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? यहाँ पर फाइंड हमें क्या करना था वो तो लिखना ही भूल गया मैं। इसमें था आपको फाइंड Q1 and Q2, मतलब फाइंड अ चार्ज ऑन द प्लेट, ये करना था हमें, और वो हमने ढूंढ लिया। देखो Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई। बोलो किसी को कोई डाउट है यहाँ पर?
No, sir. पक्का? राइट, चलिए तो आज के लिए हम इतना रखते हैं बेटा, कल अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कल